Good morning, class. How are you? And I hope you are fine. And this is the third and the last part of the seventh chapter of First Flight. चलो क्लास फिर स्टार्ट करते हैं. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajiv's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajiv to visit his home during the summer vacation. अब क्या होता है कि जो प्रांजल और जो राजीव होते हैं वो दोस्त होते हैं, और प्रांजल के जो फादर हैं वो चाय के मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं असम में. तो जो गर्मियों की छुट्टियों में जो प्रांजल है वो राजीव को इनवाइट करता है कि वो उसके घर चले, असम चले. ठीक है, तो चलो क्लास आगे बढ़ते हैं. चाय गरम चाय, a vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, "Chai saab, give us 2 cups," Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. So, and do you know that every 80 crore do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajiv said. "Phew," exclaimed Pranjal. Tea really is really popular. अब ना जो ये होते हैं, प्रांजल और राजीव ना असम जा रहे होते हैं, और जब ही चाय वाला आ जाता है वहाँ पर और कहता है कि चाय साहब, तो और प्रांजल कहता है कि 2 चाय दे दो. ठीक है, तो तभी ना और दोनों चाय पीते हैं, और राजीव कहता है कि पता है संसार में कितने करोड़ चाय पी जाती है. 80 करोड़ कप चाय हर रोज़ पी जाती है, यानी 80 करोड़ कप. और तभी जो प्रांजल है वो उसको आश्चर्य होता है कि अरे 80 करोड़. तो वो कहता है कि चाय तो बहुत ज़्यादा मशहूर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल buried his nose in the detective book again. Rajiv too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful सीनरी. अब क्या होता है कि जैसे ट्रेन चलती है तो प्रांजल अपनी जो डिटेक्टिव की बुक है उसमें वो खो जाता है, और राजीव भी बहुत ज़्यादा फ़ैन होता है बहुत ऐसी डिटेक्टिव स्टोरीज़ का. ठीक है, लेकिन वो बाहर की जो सीनरी है, जो ट्रेन में से जो सीनरी है उसको देखने का वो शौकीन था. It was green everywhere. Rajiv had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. अब क्या होता है कि बहुत जहाँ भी देखता है ना राजीव, तो उसको हरियाली दिखाई देती है. और जब वो उसको देखता है, पैडीज को देखता है, धान को देखता है, तो उसको क्या लगता है कि भाई ये तो चाय है. It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see, dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy, and shade trees, and amidst the ordinary rows of bushes busily moved road like fingers. अब वो जहाँ तक भी उसकी नज़र जाती है उसको चारों तरफ चाय के पेड़ ही दिखाई देते हैं. ठीक है. In the distance was a highly ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. अब दूर डिस्टेंस में उसको क्या दिखाई देता है कि एक पुरानी सी बिल्डिंग में से की चिमनी में से धुआं निकल रहा है. "Hey, a tea garden!" Rajiv cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajiv's excitement. अब देखो, जैसे ही प्रांजल ये कहता है कि अरे देखो एक ट्री प्लांटेशन रहा, तो वो राजीव कहता है एक्साइटमेंट में, लेकिन प्रांजल तो वहीं पर पला बड़ा है, तो उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आता है. ठीक है. "Oh, this is tea country now," and he said, "Assam has the largest concentration of plantation in the world." अब वो कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय है ना यहीं असम में ही उगाई जाती है. "You will see enough gardens to last you a lifetime. I have been reading as much I could about tea," Rajiv said. "No one really knows who discovered tea, but there are many legends.
What lessons? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water and giving it a delicious flavor. It is and it is said that they were tea leaves. अब वो कहता है राजीव कहता है कि मैं चाय के ऊपर बहुत दिनों से मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, तो उसमें इसके पीछे एक कहानी है कि जो चाइनीज़ है इसके पीछे काफ़ी कहानियाँ हैं, सॉरी एक कहानी नहीं कई कहानियाँ हैं। तो कहता है कि एक चाइनीज़ एम्परर था, राजा था, तो वो जब भी पानी पीता था तो वो पानी को उबाल कर पीता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब जो लकड़ियाँ उसने उसमें लगा रखी थी पानी को गर्म करने के लिए, तो वो उसमें से कुछ पत्ते उड़कर उसके चाय में उस पानी में गिर गए और जिससे चाय जो वो डिस्कवर हुई। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। अब जो प्रांजल है वो कहता है कि मुझे एक और बताओ, मुझे एक और स्टोरी सुनाओ। We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of these eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. अब क्या होता है कि एक और थी कि एक बोधिधर्मा नाम का एक बुद्धिस्ट साधु था, ठीक है। उसने अपने पलकों के बाल अपनी भौहों के बाल काट दिए और उन भौहों से टी के जो पेड़ उगे और वो उसने उसमें पानी में डालने से क्या होता था कि पानी में डालने से वो, और अगर वो उसमें पानी में डालता था तो उससे क्या हुई, उससे चाय जो वो डिस्कवर हो गई, ठीक है। और उससे जो उसकी जो नींद है वो भाग जाती थी, क्योंकि जो बुद्धिस्ट होते हैं वो आपने देखा होगा कि वो ना अपनी भौहें भी काट देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उससे नींद आती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजीव एडिड, एज फार एज बैक एज 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. अब कहते हैं कि जो चाय है ना उसकी जो खोज है वो जो चाय है वो पहले 2700 ईसा पूर्व में पहली बार पी गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि चाय और चीनी दोनों के दोनों चाइनीज़ वर्ड है, ठीक है। और यूरोप में तो ये 16वीं शताब्दी में आई थी, ठीक है। और इसको चाय के तौर पे नहीं पिया जाता, इसको एक मेडिसिन के तौर पर पिया जाता है यूरोप में। एंड द ट्रेन clattered into महारानी जंक्शन. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब क्या हो कि जो ट्रेन है वो महारानी जंक्शन पे आ जाती है और जो लड़के हैं वो अपना बैग उठाते हैं और क्राउडेड प्लेटफॉर्म की तरफ चल देते हैं, मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम. जो प्रांजोल के जो पेरेंट्स है वो उसका इंतज़ार कर रहे थे. सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबरी tea garden managed by Pranjol's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dekhiabari tea estate. अब क्या था कि जो प्रांजोल के पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे आए हुए थे गाड़ी में, तो वो गाड़ी में बैठकर वो देखियाबरी टी एस्टेट की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर जो प्रांजोल है वो रहता है. And on both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, and were plucking the newly sprouted leaves. अब क्या होता है कि वो जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो प्रांजोल और राजीव क्या देखते हैं कि उनको देखते हैं जो चाय तोड़ रहे होते हैं, ठीक है. जो नए नए जो पत्ते आए हैं चाय के उनको तोड़ रहे होते हैं और मज़ा लेते हैं. और
Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush or something sprouting period. Isn't it, Mr. Bora? Rajiv asked. It lasted from May to July and yields the best tea. You seem to have done your homework before coming. Pranjal's father said in surprise. Yes, Mr. Barua, Rajiv admitted, but I hope to learn much more than while I'm here. तो वो कहता है कि ये सेकंड बुआई चल रही है चाय की, ठीक है। वो उसको कहता है, राजीव कहता है प्रांजल के फादर को कि ये सेकंड बुआई है चाय की। तो प्रांजल के फादर है जो वो थोड़े सरप्राइज़ होते हैं और वो कहता है कि तुमने तो यहाँ से आने से पहले काफ़ी होमवर्क कर रखा है, ठीक है। और जो राजीव वो इस बात को मान लेता है और वो कहता है कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कुछ जानूँगा। अभी मुझे काफ़ी कुछ सीखना है, मुझे ऐसी आशा है। थैंक यू सो मच क्लास, आपका चैप्टर पूरा होता है। बाय।